Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. And this is Meenakshi Narula, and I shall discuss learning outcomes and pedagogy today. We shall discuss each and everything, each and every bit, each and every topic, subtopic related to learning outcomes and pedagogy. So, the topic will not be covered in a single video. We shall be sharing different parts so that you can understand each and every topic in detail and you will be able to effectively implement learning outcomes in your pedagogy. Everybody is talking about learning outcomes. We have replaced our usage of learning objectives with learning outcomes. We have got several documents from NCERT and CBSE for various learning stages, for elementary, for secondary, for senior secondary, different sorts of learning outcomes for different subjects. So it is expected from us, like we need to incorporate our learning outcomes in the lesson plans, in the content that we deliver in the classes. So we shall discuss in detail what are learning outcomes, what is the structure of a learning outcome, how it is different from learning objectives, what is will be the pedagogy, and what is the structure of a learning outcome. We shall discuss each and everything in detail. As you can see on the screen, there is an image of teaching learning cycle. If you go and Google it, you'll be able to find several pictures for teaching learning cycle. They all are different. So if you study them in detail, there is something common in them, like whatever the structure may be, whatever the diagram may be, but everywhere we are talking about a teaching learning cycle. It begins with some objective or maybe the outcomes in mind, and then we start with the process, then it's a measurement or the assessment part, and after that it's evaluation or maybe the reflection part is there. So we shall also discuss this teaching learning cycle but in a different manner. Before we study teaching learning cycle, let us discuss some of the benefits of teaching learning cycle. The teaching learning cycle can be used in any content area, in any of the subjects, right? Across any topics, any contents you would like to deliver, teaching learning cycle can be incorporated. And the goal of this implementation of teaching learning cycle is to create a motivational learning experience for our students. The children should be motivated to learn more, to explore more. And it also focuses on active student engagement. The students are engaged in the process of exploration, discussions, and synthesis. That is, finally, they construct, they create their own knowledge based on their understanding and exploration. And the objective of teaching learning cycle is to cause lasting changes in the student's concept and understanding. And each step of the teaching learning cycle has a specific purpose and it is specifically designed, right? So, for that, we also are required to explore the prior understanding of our students. So, you can have a glimpse at this. Like, these are the different points that I have covered. They are very important for a teaching learning cycle. So, my dear educators, moving ahead, talking about teaching learning cycle. See, in this video, we'll be bilingual. Some of the important points I'll be explaining the same in Hindi as well, so that you will be able to get the gist of it. Right? Though content will be visible to you on the screen in English language only. So, teaching learning cycle, it has 4 steps. Starting with LOs, like intended learning outcomes. We talk about what are the learning outcomes that a teacher intends to uh, explore by its students. We want our students to be exhibiting these sort of learning outcomes. So the first step is intended learning outcomes. So as a teacher, we need to choose topic and we'll be defining the intending learning outcomes for a given content for a given set of students, targeted student, the targeted audience. And the second step is IP. Like the second step would be after selecting, after defining the learning outcomes, we will be designing the instructional practices in the classroom to help achieve the learning आउटकम्स. पहले हमने लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन किया, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको पढ़ाने के लिए, उसके बाद में हम उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को हम डिजाइन करेंगे, यानी कि मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन से एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, कौन से कॉम्पिटेंसीज पर हमें फोकस करना है, तो वो हम
लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करने के बाद में सेकेंड स्टेप है इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को डिजाइन करना। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स। सिर्फ हमने लर्निंग आउटकम्स एक्सप्लेन कर दी, डिफाइन कर दी या उसका प्रोसेस डिजाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने वो लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिया और वी जस्ट कंसिडर कि they all are reflecting those learning outcomes. We need to measure it also. So here comes the assessment or maybe the evaluation part, right? So we need to design assessment closely related to measuring the learning outcomes, and the scoring rubric to also be defined. So my dear educators, in this series of these videos that will be based on learning outcomes and pedagogy, we shall discuss about rubrics also. We'll be designing rubrics as well, राइट। सो असेसमेंट के डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आपको ये स्टेप समझ में आना चाहिए इस साइकिल के कि सबसे पहले हमारे पास लर्निंग आउटकम्स है, उसके बाद हमारे पास इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करने के बाद में वी हैव गॉट आवर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस डिजाइनिंग, and after that we have to design the processes in order to assess or measure the learning outcomes. And the last and the important part is reflection. रिफ्लेक्शन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन जो भी है हम करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि वेदर हमारी जो प्रोसेस था जो हमने डिजाइन किया उसके थ्रू वेदर वी वर एबल टू हेल्प आवर चिल्ड्रन अचीव दोज लर्निंग आउटकम्स। क्या वो बच्चे लर्निंग आउटकम्स रिफ्लेक्ट कर पाए, क्या वो जो एक्टिविटी थी वो करेक्ट थी, एक्यूरेट थी, इन ऑर्डर टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट दोज लर्निंग आउटकम्स। अगर वो एक्टिविटी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो थी, उसने बच्चों के सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में तो उसमें एनहांस कर दिया, बट हम उसको असेस नहीं कर पाए, वी वर नॉट एबल टू हेल्प आवर चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट दोस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम्स, तो हम उस एक्टिविटी को रखकर इन आवर नेक्स्ट स्टेप हम उसको एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी की तरह पर रख सकते हैं उसको, दैट हेल्प अस in enriching our subject matter, delivery of the content, but we have to plan some another activity for the assessment, right? So ये हमारी reflection के लिए है। इसके लिए you can divide the same into sunny and muddy areas. You can go ahead with the 2 stars and a wish कि इसमें से क्या आपका अच्छा रहा प्रोसेसेस में, जो आपने स्टेप्स बनाए, क्या उसमें से आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट अ क्विक recap. For teaching learning cycle, there are 4 steps. First is intended learning outcomes. Next is instructional process designing. Third is measuring learning outcomes. And fourth important step, it is reflection. So after reflection, again, we will design the learning outcomes for our next lesson based on our reflection. So now let's move ahead, my dear educators. Now, can we ponder over, is there any piece of cycle that you, that I, that we need to focus more deeply in our teaching learning strategies? 4 साइकिल, ये जो साइकिल है उसके 4 स्टेप तो है ही, तो उसमें से हमें किसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कुछ चेंज लाने की जरूरत है, हमें इसके बारे में सोचना है। क्या हमें रिफ्लेक्शन के ऊपर हम फोकस नहीं करते, या हम असेसमेंट को नहीं अच्छे से इनकॉर्पोरेट करते, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम उसमें नहीं यूज करते, और मे बी वी आर यूजिंग ओनली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ाना है एंड वी डोंट थिंक अबाउट द लर्निंग आउटकम्स कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या लर्निंग आउटकम्स रिफ्लेक्ट करेंगे। सो वी नीड टू पॉन्डर ओवर, राइट? If you have any questions, do share in the comment section below. I'm still there. So let us talk about learning outcomes. Let's know more about learning outcomes. Here, my dear educators, learning outcomes, as you can see here on the screen, I have written several points. Learning outcomes क्या होती हैं? They are the descriptions of specific knowledge, skills, and expertise that the learner will get from learning activity. Maybe a training session, maybe a workshop, maybe your class delivery, maybe a seminar or the course or the program. जो भी हम क्लास में कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं, चाहे हम लेक्चर के थ्रू डिलीवर करा रहे हैं, जहाँ हमारी लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी है या फ्लिप्ड लर्निंग है, कोई भी मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथोडोलॉजी, हम ऐसे एक डिस्क्रिप्टर्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये एक्टिविटी के बाद, इस लेसन के बाद, इसके बाद बच्चे को क्या बच्चा रिफ्लेक्ट करे, कौन सी वो स्किल्स एग्जिबिट करे, कौन से उसमें कॉम्पिटेंसीज वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कितना उसका नॉलेज कंटेंट उसको पास होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज और द वैल्यूज, तो वो हम एक डिस्क्रिप्टर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। होल्ड ऑन, नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, जस्ट आगे और पॉइंट सुनोगे तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट, एंड वी विल बी डिजाइनिंग आल्सो आवर लर्निंग आउटकम्स।
लर्निंग आउटकम्स जो होती हैं वो मेजरेबल अचीवमेंट्स होती हैं, जो कि लर्नर जो है उसको अंडरस्टैंड करके कंटेंट को उसको रिफ्लेक्ट करता है। राइट, लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर लर्निंग इज कंप्लीट। जब वो एक लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो लर्नर, वो स्टूडेंट उन स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज को वो रिफ्लेक्ट करता है। Learning outcomes also play a key role in assessment and evaluation, making clear what knowledge learners should have upon completion of the learning ability. Assessment में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हम लर्निंग आउटकम्स डिफाइन कर रहे हैं, तो ये बच्चा एग्जिबिट करेगा आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स, आफ्टर द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। लाइक वो हमारा टारगेट रहता है, तो हमारे लिए असेसमेंट लेना उनका आसान हो जाता है। राइट, सो एज वी से कि हम रोड मैप जो बनाते हैं, हमें पहुंचना कहाँ पर है, हम वो पहले अपना डेस्टिनेशन तय करते हैं। पहले क्या होता था कि हम क्लासेस में, इफ आई टॉक अबाउट 1970s 1980s, इनिशियली जब हम लोग भी जब पढ़े हैं, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि मैं एज अ टीचर क्लास में क्या पढ़ाऊंगी। मुझे आज बच्चों को एक कविता पढ़ानी है, मुझे कविता का सरलार्थ कराना है, मेरे बच्चों को मैंने ये बताना है कि ये जो पोएट है इसकी थोड़ी बैकग्राउंड ये है, इस पोएम से क्वेश्चन आंसर्स कराने, तो मैं क्या कराऊंगी। राइट, सो दैट वाज ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं आउटकम्स की, कि अगर मैं उसको चेंज करती हूँ कि अगर ये मैं एक पर्टिकुलर कविता क्लास में लेके जा रही हूँ, तो अगर मैंने पढ़ा दिया, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भावार्थ करा दिया, तो मैं उसको टेस्ट कैसे करूंगी, मेजर कैसे करूंगी, मेरे बच्चे कहाँ पहुंचे, मैंने क्या सोचा कि मेरे बच्चों को इससे क्या फायदा होगा। तो बच्चों को अपने मन में रखते हुए, टारगेट रखते हुए, अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए, आफ्टर रिसाइटिंग, आफ्टर डिस्कशन ऑन दिस पोम, मेरे बच्चों को क्या पता होना चाहिए। आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू they will be able to enhance their vocabulary related to a particular theme, जिस थीम से, जिस टॉपिक से वो पोएम रिलेटेड है, मेरे बच्चे उसको प्रॉपर रिदम में, इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको पूरा रिसाइट कर पाएंगे। मेरे बच्चे उसको डेली लाइफ के साथ वो रिलेट कर पाएंगे, जब भी हो सके उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ आए तो वो उस में से कुछ एक पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करके बता सकते हैं। आई मीन दिस इज हाउ मैं अपनी लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर सकती हूँ। ये है डिफरेंस आउटकम्स में एंड ऑब्जेक्टिव्स में। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके और आगे जाएं, लेट्स टॉक अबाउट मोर पॉइंट्स। Like a well-written learning outcomes will focus on how the learner will be able to apply the knowledge in the real world. जो मैंने आपको बताया ना कि हम इसमें ये डिफाइन करते हैं कि मेरा स्टूडेंट उस नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे यूज करेगा, rather than one learner being able to recite information. सिर्फ जो सुना है क्लास में उसको आगे सुना देना तोते की तरह, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। लर्निंग आउटकम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका टारगेट है, वो ये है कि अपनी जो नॉलेज जो बच्चों को हमने प्रोवाइड करी है, जो स्किल्स और एबिलिटीज हैं, उनको रियल लाइफ सिचुएशन में हाउ विल दे बी एबल टू यूज। And the most useful learning outcomes include a verb that describes an observable action. The important part of the learning outcome is observable action, जिसको हम verb से define करते हैं। There are a list of verbs under different categories defined by Benjamin Bloom, given to us in 1946, though we have got a revised version in 2001 also, that was basically focused on verbs. Earlier it was focused on nouns. We shall be talking about this also in detail in the upcoming videos as well. So a description of what the learner will be able to do, what the learner will be able to do, और इसके साथ में और क्या है, under which conditions, कौन सी conditions में they will be able to do it, and the performance level they should be able to reach. राइट, अब इतने सारे लर्नर हैं, हर एक का परफॉर्मेंस लेवल अलग अलग होता है, हर एक का जो उस परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंचने का जो टाइम है वो अलग अलग है। जहां पर हम बात करते हैं सेल्फ बेस्ड लर्निंग की, तो जो आपकी लर्निंग आउटकम्स आप डिफाइन करोगे उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसमें इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज PCC। P इज परफॉर्मेंस लेवल, C इज फॉर क्राइटेरिया एंड C इज फॉर कंडीशंस, कि बच्चा क्या परफॉर्म करेगा, उसको असेस करने का आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा,
और वो कौन सी कंडीशंस में होगा। ये PCC आपको डिफाइन करना जरूरी है इन द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट ऑफ अस दे यूज इंटरचेंजेबली, बट दे आर डिफरेंट। आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू कि क्या फर्क है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, लर्निंग आउटकम में, बट स्टिल इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टॉक अबाउट सम मोर पॉइंट्स। इफ आई टॉक अबाउट पर्सपेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है दे आर टीचर सेंटर्ड एंड लर्निंग आउटकम्स दे आर स्टूडेंट सेंटर्ड। Learning objectives, it is actually why the teacher is creating a learning activity. If I have designed an activity, for that I will be able to justify why I have created this activity, because मुझे अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना है, मुझे अपना जो कंटेंट डिलीवर करना है उसके लिए that is a process that will be helping me in achieving that target. But if we talk about learning outcomes, when the learner will gain from the learning activity, what the learners will be gaining from the activity. So learning outcome का जो perspective है, वो teacher के angle से होता है learning objective का, learning outcome का होता है from the student's perspective. So it is teacher centered, learning objective is teacher centered, and learning outcome is student centered. If I talk about purpose versus outcome, learning objective states the purpose of the learning activity and the desired outcomes. See, what is the purpose of this particular activity that I have designed for my students? And if I talk about learning outcomes, it states whether the learner will be able to, what the learner will be able to do upon completing the learning activity. एक learning activity जब complete हो जाती है उसके बाद मेरे learners, मेरे students क्या कर पाएंगे। क्या वो, मैंने अगर अगर सपोज एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, अगर मैंने सोचा है कि मैं क्लास में ये एक्टिविटी कराऊंगी जिससे मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि एसिड का ये इफेक्ट है, बेस का ये इफेक्ट है, एंड दिस इज हाउ वी गो हैड विद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और व्हाटएवर। इफ आई टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम्स, इसमें होगा कि मेरे स्टूडेंट्स उस नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे यूज कर पाएंगे आफ्टर दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ you see learning outcomes and all, how they'll be able to connect the same with the real life, right? And if we talk about future versus past, learning objectives, what the teacher hopes that the learning activity will accomplish, it looks to the future, what will happen कि future में ये होगा, okay, मेरे बच्चे ये समझेंगे, my students will understand the concept of acid and base, my students will define acid and base, my students will distinguish between acid and base. So ये सब क्या है? These all are the learning objectives. And if we talk about learning outcomes, this looks at what has been accomplished, what has been happened for the learner as a result of their participation in the activity. कि इस एक्टिविटी में मेरे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में वो क्या कर पाएंगे। They will be able to maybe classify, maybe sort the acids and the bases present in the kitchen, found in the real life situations. They will be able to do, because हमारा वो टारगेट होता है, हम टारगेट को पहले सेट करके उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक्टिविटी प्लान करते हैं। So this is the difference. If I talk about intended outcomes versus observed outcome, now what the creators of the learning activity hope to achieve. अगर मैंने कोई learning activity plan की है तो मैं उससे क्या achieve करूंगी। And if I talk about what can be demonstratively shown to have been achieved by the activity, कि इस activity के बाद में मैं demonstrate कर पाऊं कि मेरे बच्चों ने क्या अचीव किया है, what they will be able to reflect. So that is the difference. If I talk about specific units of knowledge and the broad outcome, on the basis of this, learning objective describes discrete concepts, skills और units of knowledge. सिर्फ हम इसमें knowledge की बात करते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आ जाएगा, वो ये सीख पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, ये उनको ये नॉलेज, देखिए सारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन। सो उसका कोई मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, वो तो हम बता देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम्स, it describes a wider range of the behavior, knowledge and the skill that makes up the basis of learning, right? कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा बच्चा कैसे बिहेव करता है, एक बच्चा मेरे उस नॉलेज के साथ कौन सी स्किल्स एसोसिएटेड हैं, कौन से उसके टारगेटेड आउटकम्स जो हैं वो अचीव करेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो इन कंक्लूजन, वी जस्ट कम हियर, वी टॉक अबाउट
Learning outcomes describe the measurable skills, abilities and knowledge or values. हम बात कर रहे हैं इसमें नॉलेज की, स्किल की, वैल्यू की, एबिलिटी की, पर इसके आगे एक डिस्क्रिप्टर लगा है, दैट इज मेजरेबल, राइट? ये मेजरेबल होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, and should be able to demonstrate as a result of completing a course. After completion of a course, after completion of the chapter, after attending a class, after doing an experiment, after doing an activity, जो भी आपने वो कोर्स डिफाइन किया है उसको कंप्लीट करने के बाद बच्चा वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा लर्निंग आउटकम्स, एंड दे आर स्टूडेंट सेंटर्ड रादर देन टीचर सेंटर्ड, इन दैट दे डिस्क्राइब्ड व्हाट द स्टूडेंट्स विल डू, नॉट व्हाट द इंस्ट्रक्टर विल टीच। मैंने क्या पढ़ाना है उसकी अहमियत उतनी नहीं है, अहमियत इस चीज की है कि मेरा बच्चा क्या रिफ्लेक्ट करेगा, माय स्टूडेंट्स व्हाट विल दे बी एबल टू डू, सो दैट इज लर्निंग आउटकम। सो इफ आई गो फर्दर, what are the benefits of LOs for the teachers? LOs mean learning outcomes. What are the benefits of LOs for the teachers? It will help teachers to decide, maybe emphasize in the course of all the things that we could teach, we should, why should we teach, what should we teach, हमने क्या पढ़ाना है, हमने क्यों पढ़ाना है, बिकॉज जब हम इंस्ट्रक्शनल पाथ डिफाइन करते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है उस चीज में। हमें जब रोड मैप का पता है, वो गूगल मैप के ऊपर हमने अगर लोकेशन डाला है, अपना एक एड्रेस डाला है कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है, ये मेरी एक आउटकम है, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो उसके बाद में आप देखिए वो रोड, वो डिफाइन मैप अपने आप करता जाता है। रास्ते में कई बार ऑब्स्टेकल्स हैं, कहीं पर ट्रैफिक है, राइट? ट्रैफिक है, उसमें हमें दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, टीचर हैज टू प्रोवाइड मोर स्कैफोल्डिंग फॉर दैट। मे बी जब वो नहीं जा पाता तो उसके लिए नया रूट, री रूटिंग कर दी जाती है। तो ऐसे ही हम क्लास में डिफरेंशिएटेड लर्निंग की जब बात करते हैं, एक बच्चा पर्टिकुलर उस पाथ से, आई मीन the way I am teaching, student is not able to understand, so I have to design another strategy so that the child will be able to understand. I have to design a strategy, I have to design a path the way my child is able to understand. उसकी रीरूटिंग करेंगे हम ताकि हम उसको फाइनली उसके आउटकम तक लेके जाएंगे, राइट? सो आउटकम को डिफाइन पहले कर दिया कि जाना कहाँ है, तब हम वहां से स्टार्ट होकर अपना इंस्ट्रक्शनल प्लान, जो रोड मैप है, वो डिजाइन करेंगे। यही मैंने आपको टीचिंग लर्निंग साइकिल के फर्स्ट स्टेप में भी बताया था कि पहले हम इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स जो है वो डिफाइन करेंगे और उसके बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, वो हम उसको डिजाइन करेंगे। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से टीचर्स को पता चल जाता है कि किस तरीके से उनको उस आउटकम तक बच्चों को पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने हैं, राइट? सो इट also helps us to decide how best to assess learning. Do I need a project or a final exam? जब एक्टिविटी मैंने डिजाइन कर दी, ये मेरी लर्निंग आउटकम है, मैं चाहती हूँ बच्चा ये लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करे, एग्जिबिट करे अपनी डेली लाइफ में, तो मुझे देखना है कि इस लर्निंग आउटकम के लिए मुझे पेन एंड पेपर टेस्ट करना है, या मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट करवानी है, या मुझे रोल प्ले एक्टिविटी करानी है, या व्हाट ऑल अनदर सॉर्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन आई नीड टू प्लान, राइट? तो ये मुझे उस चीज में भी हेल्प करता है। Communicate expectations to students. Now you will be able to communicate your expectations to students ki beta after the end of this chapter, after the end of this lesson, you will be able to reflect these learning outcomes. तो वो बच्चों के लिए भी एक that helps as assessment as learning also, right? तो वो उसमें चेक करते जाते हैं कि कितना उन्होंने अचीव कर लिया and what is the target pending, they are able to map their learning, right? सेल्फ बेस्ड लर्निंग, उनको भी पता है कहां तक वो पहुंच गए हैं, दैट इज सेल्फ असेसमेंट ऑल्सो, राइट? सो दे आर वेरी हेल्पफुल। इफ आई टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स, तो हमने पहले स्लाइड में वैसे भी समझ लिया है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके, बट एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स इट हेल्प देम टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टीचिंग लर्निंग, राइट, बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, एंड टेकिंग मच ऑफ गेसिंग आउट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू लर्न, कि मुझे कितना अटेम्प्ट और करना पड़ेगा, मुझे कितना और सीखना है, ये कौन सी लर्निंग आउटकम्स हैं जो मैंने अभी रिफ्लेक्ट नहीं करी, मुझे उस चीज के लिए मैंने नहीं अचीव किया है, एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट, एंड enabling them to truly master the content of the course, right? तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरे से एक्सपेक्टेशन है मेरे टीचर की, और मेरे उसके लिए मुझे ये करना है, right? So that we have shared the key with them in the form of learning outcomes. So before starting any chapter in your class, make sure you share the learning outcomes with your students. And when you talk about learning outcomes, the learning outcomes should always be SMART.
स्मार्ट जो आप सबको पता भी हो सकता है आप जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, बिकॉज आई नो एवरीबडी इज नोइंग अबाउट इट, बट while attending many of the sessions I got to know there are a few teachers even from some areas they are even not aware of a few terminology terms also, so I will take some time to describe that also. Smart learning outcomes, we have our smart goals, पोर्टफोलियो जब बनाते तो बच्चों को बोलते अपने स्मार्ट टारगेट्स रखो, ऐसे ही लर्निंग आउटकम भी जो हम डिजाइन करेंगे, हर एक लर्निंग आउटकम स्मार्ट होनी चाहिए। कैसे स्मार्ट होगी? एज पर स्पेसिफिक, हमें स्पेसिफाई करना है उस लर्निंग आउटकम में हम चाहते क्या हैं, बहुत क्लियरली डिफाइन, कि बस वो ही दिखे, कि वो ही हमें अचीव करना है। वो अर्जुन को जो मछली की आंख दिख रही थी वो स्पेसिफिक थी, वही। तो ये हमारी जो लर्निंग आउटकम है वो भी स्पेसिफिक ही होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं मेजरेबल, कि लर्निंग आउटकम्स को हम इजीली मेजर कर पाए। मतलब कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई ऐसी मेथोडोलॉजी होना चाहिए जो भी हम सिस्टम अपनाएं कि हम वो मेजर कर पाए। देखिए जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, यू आर एबल टू सी कि कौन से बच्चे ने कितना मेजर किया है, कौन से बच्चा कितना अचीव किया है, रिफ्लेक्ट किया है, तो हम उसको मेजर कर पाए किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू, उसकी असेसमेंट कर पाए। एंड अटेनेबल, अटेनेबल पे हमने क्या बनाया, उसकी प्रोग्रेस दिखाई हुई है। ठीक है, कि वो बच्चा यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक पहुंच रहा है, वो अचीव कर पाए। ठीक है, और उसका ग्राफ कोई भी हो सकता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट भी हो सकता है, उसका ग्राफ कर्व भी हो सकता है, उसका ग्राफ जैसे भी उसको वहां तक पहुंचना है। एंड दे विल बी हैविंग एन इंडिविजुअल ग्राफ ऑल्सो, तो अटेनेबल है। टाइम के साथ देखो बढ़ती जा रही है उसकी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, तो ये है अटेनेबल। नेक्स्ट आ रहा है रेलेवेंट, कि जो हमारी लर्निंग आउटकम है वो कंटेंट से रेलेवेंट होनी चाहिए। देखिए ये जो दो सर्कल है इसका ओवरलैपिंग पार्ट देखिए, सो व्हेन डायग्राम, तो जहां पर ये ओवरलैप कर रहा है मतलब ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी लर्निंग आउटकम है। जहां पर वो ओवरलैप कर रही है वो हमारी जो है लर्निंग आउटकम होनी चाहिए। राइट, तो ये हमारा कंटेंट है, उसी से रिलेटेड होना चाहिए, दैट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। राइट, एंड नेक्स्ट इज टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए, कि हम सोचते हैं एंड ऑफ द चैप्टर बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, बिफोर द पीरियोडिक टेस्ट कर रहा है, या बिफोर द हाफ ईयरली एग्जाम कर रहा है। ठीक है, टाइम बाउंड, यहाँ हम बोलें कि 15 दिन के अंदर कर रहा है, या ये आज मैंने कर दिया तो नेक्स्ट आने वाले इवेंट तक बच्चे में ये लर्निंग आउटकम्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो टाइम जो भी है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। लेट्स क्विकली रिकैप। एस स्पेसिफिक, वर्जन की आंख की तरह। मेजरेबल, आपको दिखना चाहिए पूरा बच्चे का जो है, यू विल बी एबल टू मेजर दैट। अटेनेबल, राइट, प्रोग्रेस उसकी नजर आनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी टाइम बाउंड, सो योर एलोस शुड बी स्मार्ट. So my lovely educators, if I go ahead and we talk about in detail these terminologies, specific, measurable, A is attainable also, A is agreed upon also, realistic and time framed, right? Realistic and relevant. So they are used in different forms, right? In different cases. So the objective is same. So if I talk about specific, the learning outcome should be well defined, it should be clear, and it states exactly what will be accomplished. Exactly क्या करना है, वो मछली आपका टारगेट है या मछली की आंख आपका टारगेट है, तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। कुछ उसमें किसी तरीके का वो वेग नहीं होना चाहिए कि बच्चे को समझ नहीं आए कि क्या मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. It should be measurable. The learning outcome should provide a benchmark or the target, so that institution, so that we as teachers, so that the organization can determine कि हमने बच्चों ने कितनी learning outcomes achieve कर ली हैं, and how much it has been exceeded or by how much it has been fallen short. मेजर कर लिया ना, जो ग्राफ बना के दिखाया कि बच्चे ने कितनी अचीव कर ली है, या कितना उसमें अभी कमी पेशी रह गई जिसके ऊपर और टीचर को हेल्प करना है स्टूडेंट को वो लर्निंग आउटकम अचीव करने के लिए। अगेन आई वुड लाइक टू से, हेल्प की जगह पर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे स्कैफोल्डिंग, राइट, क्योंकि हमेशा बच्चों को डिपेंडेंट नहीं रखेंगे, स्कैफोल्ड करेंगे, जो कि धीरे धीरे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली होती है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट अटेनेबल, और इसको अग्रीड अपॉन भी कह सकते हैं। अटेनेबल क्या है, जो हमने देखा कि प्रोग्रेसिंग टाइम के साथ बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा उसको अचीव कर रहा है।
अगर हम एग्रीड अपॉन की बात करें, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, लर्निंग आउटकम्स वैसे आप बच्चों के साथ मिलकर भी डिफाइन कर सकते हैं कि why not together plan the learning outcomes when students and the teachers they can work together and they will be able to have the learning outcomes together for a given content of the course or the activity कि इसके बाद क्या reflect करेंगे हम सब मिलकर. So that can also be done. If I talk about realistic or the relevant, number one, it should be relevant to the topic. Realistic, something they'll be able to do. Something, yes, they can do it in front of you. You'll be able to see it. You'll be able to help your children to achieve it. Okay, it should be reasonable also, right? It should not be so easy कि मतलब उसका करने का कोई लॉजिक ही नहीं है. It should not be that impossible to attain. ऐसा नहीं होना चाहिए. Something in between, easy and impossible. So that is means it should be realistic. If I talk about time framed, a learning outcome should include a specific date. जैसे मैंने आपको बताया, इवेंट के बाद, चैप्टर के बाद, कोर्स के बाद, पीरियोडिक टेस्ट से पहले, हाफ ईयरली से पहले, जो भी है टाइम जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. And moving ahead, if I talk about the format of learning outcomes, Bloom's revised taxonomy जो मैंने आपको बताया, it was revised in 2001, where we replaced the nouns with the verbs. नाउन अलग थे, वर्ब अलग है. वर्ब क्या है? वर्ब में बहुत सारी उसमें चेंजेस हैं. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. जो हम पहुंचते हैं रिमेम्बरिंग से लेकर क्रिएटिंग तक. पहले रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, अप्लाइंग यहाँ बोलते हैं. रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ये हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं. इसके बाद हम आगे जाते हैं एनालाइजिंग, इवैल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग. तो ये 6 लेवल्स हैं उसमें, ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंगली ईच लर्निंग आउटकम इज रिप्रेजेंट बाय अ सेंटेंस एंड सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यूजुअली हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब बच्चों को समझाते हैं, अपनी और लैंग्वेजेस में समझाते हैं, करता है, कर्म है, क्रिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. तो इस लर्निंग आउटकम में हमारे पास SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्या क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. So, my dear educators, let's first of all talk about subject. Subject, karta, right? Subject of the learning outcome is the student or the learner. हमें ये नहीं डिफाइन करना the teacher will deliver a content, the teacher will explain the topic to the students, the teacher will recite the poem. No. Subject कौन है? स्टूडेंट है. सब्जेक्ट कौन है? लर्नर है, जो सीख रहा है. कर्ता वही है. Each student will be able to use, देखिए 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. Each student will be able to use word processing, spreadsheet, database, presentation, graphics in preparing their final research project and report. तो हमने इसमें each student क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं. और उसके बाद लिखा हमने will be able to, वो क्या करेगा. एंड नेक्स्ट का जो पार्ट है, अभी हम उसको आगे और भी डिटेल में स्टडी करेंगे. जो हम डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब पार्ट क्या कर रहा है? विल बी एबल टू यूज कर रहा है. क्या यूज कर रहा है वो हम उसके बाद में उसके कोर्स कंटेंट से, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट इसमें ले लिया. विल बी एबल टू यूज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, जो भी आप एक चीज लिखना चाहते हैं या ज्यादा लिखना चाहते हैं, इन प्रिपेयरिंग, किसमें यूज करेगा? देयर फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट. तो ये टाइम बाउंड भी हो गया, राइट. टाइम बाउंड मतलब जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करी जाएगी उसमें ये उसको इफेक्टिवली यूज कर पाएगा. तो ये हमारी एक लर्निंग आउटकम्स है. ऐसे ही आप नेक्स्ट जो एक आपके पास लर्निंग आउटकम है, उसके आप इस पॉइंट का आप ध्यान रख सकते हैं. लुक हियर, इट इज अपॉन कंप्लीशन ऑफ द मॉड्यूल, कि मॉड्यूल जब कंप्लीट हो जाए, मतलब टाइम बाउंड हो गया. ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारा टॉपिक है, कोर्स कंटेंट है. एंड स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट. विल बी एबल टू, क्या कर पाएंगे वो? क्लासिफाई. क्लासिफाई क्या होगी हमारी? वर्ब, एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. क्या क्लासिफाई कर पाएंगे? स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव फीलिंग लर्निंग डोमेन्स. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट का टाइप हो गया, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट. सब्जेक्ट इज जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, राइट. ऑब्जेक्ट है वो लर्निंग आउटकम्स के मतलब में. आप देखिए, अभी आपको मैं पिछले वाली स्लाइड पर वापस लेकर जाती हूँ. SVO,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? लर्नर, दैट इज कर्ता। वर्ब क्या है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली जो भी हम इसमें वर्ब लेते हैं, और जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में वर्ब लेते हैं, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी, उन्होंने हमें 3 डोमेन्स के अंडर अपनी टेक्सोनॉमी दिया है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, जिसको हम कैप के नाम से भी जानते हैं, CAP, कैप। C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। इसको हम 3H के नाम से भी जानते हैं: cognitive related to our head or knowledge, affective related to our heart or feelings or emotions, and psychomotor related to our gross motor skills, that is hand, fine motor or gross motor skills. तो इन 3 डोमेन्स के अंडर वी हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स। तो इसमें से कोई भी वो हम पर्टिकुलर वर्ब लेंगे, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? जो हम बच्चों से बिहेवियर एग्जिबिट कराना चाहते हैं। We want our students to reflect a particular behavior related to a particular course content. तो ये इस लर्निंग आउटकम के 3 बेसिक पार्ट हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सब्जेक्ट है, करता है, कौन होगा वो? हमेशा स्टूडेंट, लर्नर, जो सीख रहा है। शिक्षक नहीं, वो होगा शिष्य। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब्स। जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि वर्ब्स हम 3 टाइप में से किसी भी डोमेन से ले लेंगे: कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इनके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड लर्निंग आउटकम शुड कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कॉग्निटिव के बारे में, राइट, नॉलेज से रिलेटेड। नाउ कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो हमने वहां से बच्चों को क्रिएशन लेवल तक लेके आना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी जो वर्ब्स हैं आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन ऑल्सो। आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और मे बी आई विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम इन द अपकमिंग वीडियोस टू। रिमेम्बरिंग का क्या मतलब है? रिट्रीविंग रेलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमने पढ़ा है उसको याद कर लिया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लिया। इसका जन्म कब हुआ, ये लड़ाई कब हुई, इसमें कौन था, राजा कौन था, क्या था, कौन सी जगह पर हुआ था, वो सारा हम रिमेम्बर करके वो चीजें लिख देते हैं। उसमें अपना कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाते हैं, स्टोर में से निकाल कर वो प्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज रिमेम्बरिंग। अंडरस्टैंडिंग है कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ओरल, रिटन एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास एक डेटा प्रोवाइड किया गया, रॉ डेटा, उसको पढ़ के हमने समझा, अंडरस्टैंड किया, और फिर उसको अपनी फॉर्म में हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। मीन्स वी अंडरस्टूड इट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये हमारे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं। जब हम आते हैं एप्लीकेशन, अप्लाइंग लेवल पर, कैरी आउट अ और यूज अ प्रोसीजर इन द गिवन सिचुएशन, उसी नॉलेज को हमने रियल लाइफ में जब यूज किया, दैट इज एप्लीकेशन। इफ आई टॉक अबाउट एनालिसिस, एनालिसिस में, एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं? ब्रेकिंग द मटेरियल इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। एक बड़ी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, या किसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, और हर एक पार्ट को अच्छे से एनालाइज करके उसके यूज को समझा, उसके ऑब्जेक्टिव को समझा, ताकि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करके ओवरऑल प्रोडक्ट को जो है उसकी फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो दैट इज एनालिसिस। बारीकी में समझना, बाल की खाल निकालना, स्प्लिटिंग हेयर, ठीक है, जो भी उसको आप समझिए कि बहुत अच्छे से खंगालना उसको, ठीक है। And next is evaluating, making judgments based on criterias and standards. एक हमारे पास पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पर अपनी जजमेंट देना, इवेल्युएशन देना, जज का काम करना। आपके पास ये एविडेंसेस हैं, आपके पास ये प्रूफ है, आपने ये एनालिसिस किया, आपने ये ऑब्जर्व किया है, तो उसके बाद आप उसको क्या रेटिंग करते हो, ठीक है, इवेल्युएट करते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज अ क्रिएशन लेवल, क्रिएटिंग, putting elements together to form a structure or recognize elements into the new structure। जो आपने एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, किसी चीज के समझे हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, या तो आप उसी को रीऑर्गेनाइज करके एक नई चीज बना रहे हो, राइट, या आप इंटायरली एक नई चीज बना रहे हो उसको समझ के। तो दैट इज अप टू यू हाउ यू आर डूइंग, एटलीस्ट यू आर क्रिएटिंग और रिक्रिएटिंग समथिंग। तो कुछ भी नयापन लेकर आना। तो ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के स्टेप्स हैं। और मैं, आपने और भी कोई वीडियोस देखी होंगी मेरे चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में ये एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप बच्चों से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं किसी के बारे में, व्हाट लगाकर, व्हाट इज दिस,
right? What is a cell phone, what is a mobile phone, what is this, what is this, what is a fountain pen? तो बच्चे ने जो नॉलेज जो सीखा हुआ है लॉन्ग टर्म मेमोरी में से रिट्रीव करके आपको बता दिया, जो उसने बुक्स में पढ़ा है, जो उसने गूगल सर्च किया है, जो उसने एआई से सर्च किया है, वो उसने आपको बता दिया। रिमेम्बरिंग, उसमें बच्चों की कोई नई लर्निंग नहीं होती, वो सिर्फ एक स्टोर हाउस का काम करता है। जैसे हमारे घर में एक स्टोर होता है जिसमें कोई चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं जो बहुत बार यूज़ भी नहीं होती है। स्टोर में यही चीज़ें रखते हैं जो हम यूज़ नहीं करते। रख दिया उसको स्टोर हाउस में, सालों-साल वो पड़ी रहती हैं वहाँ पर। बट कभी-कभी ज़रूरत हो तो फिर वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों को हम याद दिलाते हैं, फोटोसिंथेसिस की डेफिनिशन याद कर लो, ये कर लो, रोटेशन की, रेवोल्यूशन की, क्रैमिंग कर लेते हैं, वो अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। राइट? पड़े-पड़े उसके ऊपर धूल-मिट्टी सब पड़ जाता है चीज़ों के ऊपर स्टोर हाउस में। तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से उनको रिट्रीव करने से जैसे ही आधा-पचाधा उनको याद आता है वैसा वो लिख देते हैं। तो दैट इज़ रिमेंबरिंग, राइट? व्हाट से हम ये टेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं अगर बच्चों से ये सवाल पूछूं कि हाउ डज दिस मोबाइल फोन वर्क, हाउ डज दिस फाउंटेन पेन वर्क, हाउ डज दिस पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट द स्पीडोमीटर वर्क, व्हाट इज स्पीडोमीटर, रिमेंबरिंग हो गया। हाउ डज इट वर्क, ये मशीन कैसे काम करती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, स्पीडोमीटर कैसे काम करता है, तो हम क्या बात करेंगे कंप्यूटर का जो भी कैसे काम करेंगे, दैट वी विल टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज कैसे फंक्शन करती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर, देन वी focus on understanding. Now, if I talk about applying, if I ask, can you tell me some of the instruments, some of the devices where computer is used in your home? Maybe it's your wristwatch, maybe it's a washing machine, maybe it's whatever. The child will think and child will be able to apply the knowledge कि कहाँ कहाँ ये चीज particular daily life में use हो रही है. Then we talk about application. but computer तो वही है, चाहे वो हम छोटे की मोबाइल में यूज हुआ है, वॉशिंग मशीन में यूज हुआ है, या हम कहीं और यूज कर रहे हैं, तो उस सेम चीज को किसी और सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. If I talk about analysis, if I talk about कि what are the different parts of this mobile phone, इसमें क्या है, या कंप्यूटर के एक बेसिकली पार्ट की हम बात करें, इसमें सॉफ्टवेयर है, इसमें हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर में और कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें रैम की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, उसके अंदर और क्या क्या है, आईपीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं उसके फंक्शन को अगर हम समझेंगे, ठीक है, हाउ दे आर हेल्पिंग ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो इसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। या अगर मैं बच्चों को एक ऐसा भी क्वेश्चन दूं कि अगर मेरे पास ये एक स्मार्टफोन है, एक जो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं, वो नॉर्मल वाले जो बटन फोन होते हैं, ट्रेडिशनल फोन्स, उसके साथ में अगर इसको वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करें, तो इट मीन्स दे आर एनालाइजिंग इट, राइट? तो उसको वो एनालाइज कर रहे हैं। स्पीडोमीटर की बात कर रहे हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आप डिजिटल और एनालॉग में आप जो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो, मेरे पास अगर ये मैंने अभी एनालॉग वॉच पहना हुआ है, मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, तो दे विल बी एबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इन दैट। तो मैं अगर दो चीजों में कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट के लिए बच्चे को पूछती हूँ, तो इट मीन्स दे आर एनालाइजिंग, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट इवेलुएट, इवेलुएट अगर बच्चों को क्या करना है, इसमें दे हैव टू मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड द स्टैंडर्ड्स। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक ऐसा मोबाइल फोन खरीदना है जिसमें कि पिक्चर क्वालिटी ये होनी चाहिए, जिसमें स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, और रीजनेबल भी हो मेरे पास वो खरीदने के लिए, तो मैं एक सेट स्टैंडर्ड्स कुछ क्राइटेरिया दे दिया, एंड आई हैव आस्क्ड माय स्टूडेंट्स कि आप इसमें से मुझे इवैल्यूएट करके बताओ कि ये जो इतने सारे मोबाइल फोन है, मेरी रिक्वायरमेंट को कौन सा मोबाइल फोन जो है वो सर्व करेगा, मुझे कौन सा खरीदना चाहिए, मेरा बजट ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, ठीक है? तो फिर वो एनालाइज करेंगे, किसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, किसकी रैम अच्छी है, कौन सा लेटेस्ट है, किसमें क्या सॉफ्टवेयर है। तो आपने एक क्राइटेरिया दे दिया, एंड बेसिस ऑन दैट दे आर, what they doing, they are making judgments based on the given criteria and standards, means they are evaluating. तो हमने बच्चों को ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी है। इफ आई टॉक अबाउट द क्रिएशन लेवल, अगर मैं बच्चों को अपने ये बोलती हूँ कि मेरे लिए एक स्पेशली एक ऐसी रिस्ट वॉच डिजाइन की जाए, या मेरे लिए एक ऐप
आप आजकल आपको पता है स्मार्ट वॉचेस हैं, उसके साथ ऐप है, मोबाइल के साथ है, वहाँ से फ़ोन पर कॉल आ जाती है और मतलब इतनी सारी चीज़ें। तो मैं अगर उसमें अपना एक स्पेसिफ़िक ये बताऊँ कि इफ़ आई एम बिज़ी, तो मेरी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए, जैसे हमारा वॉइस मैसेज चला जाता है या ये चला जाए, और मैं एक अपनी एक गिवन सेट ऑफ रिक्वेजिशन दे दूँ कि मेरे लिए एक ऐसी वॉच जो है वो क्रिएट की जाए, या गिवन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में ये मॉडिफिकेशन कर दिया जाए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हमारे पास ऑलरेडी पहले चीज बनी हुई है, हम उसके पार्ट्स को ही, उसके फंक्शंस को जब एनालिसिस करके समझते हैं, फिर हम उसको रीअरेंज कर देते हैं, एक नई चीज बन के आ जाती है, तो वो भी क्रिएशन लेवल है। क्रिएशन का मतलब हमेशा रॉ से स्टार्ट करके कोई नई चीज बनाना नहीं है। पुरानी चीजों को भी जब हम उनके पार्ट्स को रीअसेंबल करके एक नया फॉर्म देते हैं, जो कि जिसका फंक्शन पहले वाले जो आइटम है, जो थिंग है, उससे डिफरेंट होता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएशन लेवल। तो ये आप, आई गेस अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉग्निटिव प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, राइट? कर्ता पढ़ लिया हमने, क्रिया पढ़ लिया इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी, फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू क्रिएशन लेवल। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। कर्म क्या करना है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिजाइन, मतलब हम क्रिएशन लेवल पर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज, मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो करना क्या है? किस चीज का करना है? वो अधूरा सेंटेंस हो गया ना, पूरा तो करना पड़ेगा। पूरा कैसे करेंगे? कर्म से। कर्म में क्या आ रहा है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट इज डिराइव्ड मोस्ट ऑफ्टन फ्रॉम द कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में से ही जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड हम लेंगे। मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल से रिलेटेड बात करेंगे, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं या स्पीडोमीटर की बात कर रहे हैं, फाउंटेन पेन की बात कर रहे हैं, इंजन की बात कर रहे हैं, डिवाइस की बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो हम उसी से रिलेटेड लेंगे। तो द कोर्स कंटेंट कैन बी लिंक्ड टू द 4 जनरल टाइप्स ऑफ नॉलेज। 4 तरह की नॉलेज के साथ हमारा कोर्स कंटेंट रिलेट होगा। कौन कौन सी हैं वो? फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल, मेटाकॉग्निटिव। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनिए। फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव। एंड आगे वाला जो टेबल है ये आपको इस चीज की क्लैरिटी देगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल। फैक्चुअल जो नॉलेज है, नाम से ही पता है, फैक्ट से रिलेटेड है, राइट? तो बेसिक एलिमेंट्स a student must know to be acquainted with the discipline or solve problems in it. कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है, टेक्निकल वोकैबुलरी हो सकती है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमेंट्स हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बच्चों को मैप पढ़ा रही हूँ, बच्चों को स्टेट्स के नाम तो आने चाहिए, नाम तो पता होना चाहिए, वो तो याद ही करना पड़ेगा, वो तो फैक्ट्स उनको बेसिक पता होना चाहिए। तो अगर उनको वो करना है कि कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ की कम है, तो बेसिक फैक्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। मैं वाटर साइकिल समझा रही हूँ, वो साइकिल तब समझ में आएगा जब मैं बच्चों को पहले एकेडमिक वोकैबुलरी उनकी क्लियर कराऊंगी, जब मैं उनको पहले एकेडमिक वोकैबुलरी में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, पर्कोलेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूंगी। तो दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए ये। तो ये जो है मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, उनको ये क्लियर करना। वोकैबुलरी 2 तरह की होती है, एक होती है एकेडमिक वोकैबुलरी, एक होती है इंसिडेंटल वोकैबुलरी, राइट? जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है वो हमारी एकेडमिक वोकैबुलरी है, जो हम वर्ड उसमें बेसिक यूज करते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए वो हमारी इंसिडेंटल वोकैबुलरी होती है। तो हमें उनकी जो एकेडमिक वोकैबुलरी है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो उनको क्लियर कराना है। आई होप आपको फैक्चुअल समझ में आया। नेक्स्ट गोइंग हैड विद द कंसेप्चुअल नॉलेज, इंटररिलेशनशिप अमंग द बेसिक एलिमेंट्स विद इन अ लार्जर स्ट्रक्चर। एक बड़ी लार्जर स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे छोटे हमारे उसके एलिमेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। लाइक नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। लाइक अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, वो किंगडम डिफरेंट हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, 5 किंगडम, तो उसका आपस में कैसे रिलेशन है। एम्फीबियंस हैं, पाइसेस हैं, वो किस तरीके से वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं या हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम की बात करें, तो उनका रिलेशन, आई मीन उनकी क्लासिफिकेशन, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी, आप किसी भी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द जनरलाइजेशंस, एक हमारे जो
प्रिंसिपल्स हैं, जनरलाइजेशंस हैं, लाइक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये थोड़ी थोड़ी चीजें उनको समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स उनको पता होने चाहिए। इसी के बेसिस पर फिर वो आगे अपने जो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, राइट, तो उसमें किस तरीके की ओनरशिप है, बीएसटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ थियोरीज, मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर्स, एक पर्टिकुलर थियोरी है हमारे पास, ठीक है, डार्विन की थियोरी है, हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, या हमारे पर्टिकुलर जो थ्योरीज हमारे पास ऑलरेडी डेवलप हमारे पास हैं, आफ्टर रिसर्च हमारे पास आई हैं, उनकी क्लैरिटी होना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर कंसेप्चुअल नॉलेज। तो फैक्ट समझ में आ गए और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो नाउ गोइंग अहेड विद द थर्ड पार्ट, दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ हाउ टू डू समथिंग, ऑन क्राइटेरिया यूजिंग स्किल्स, एल्गोरिथम्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स, कि किसी चीज को करना कैसे है, उसके हम प्रोसीजर की बात करते हैं। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्किल्स एंड एल्गोरिथम्स, प्रोसीजर्स जो हमारे होते हैं, एल्गोरिथम जो हमारी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमारा प्रोसेस है किसी चीज को करने का, वो उनको समझ में आना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक स्किल्स यूज इन पेंटिंग विद वाटर कलर, वाटर कलर के साथ पेंटिंग जो हम करने हैं उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उसका HCF LCM निकालने के लिए स्टेप कौन कौन से हैं। मैथमेटिक्स में आप बच्चों को समझाते हो कि ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे देन यू विल बी एबल टू कम हियर, राइट। एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स, हर एक सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं, पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बोलते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस में, उसकी क्लैरिटी होना, साइंटिफिक मेथड जो है उसको फॉलो करना। साइंटिफिक मेथड में यही होता है ना कि जब आप एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो उसके हर एक स्टेप को एक तो फॉलो करेंगे। कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो उसको जब तक आप टेस्ट नहीं कर रहे थे तब तक आप उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो ये हम डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि प्रोसीजरल नॉलेज किस तरह की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग व्हेन टू यूज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, की ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर तो हैं, कौन से प्रोसीजर को कब कहाँ कैसे यूज करना है, इस चीज की भी उनको क्लैरिटी देनी है कि वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट कर पाए, उसको जज कर पाए। ठीक है, जज नॉट बेसिस ऑन बीइंग जजमेंटल, जजिंग after evaluating, right? This is very important. Now coming to the last one, it is metacognitive. Now if you talk about metacognitive knowledge about cognition in general and awareness of one's own cognition, जिसको कि हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी कहते हैं, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में, सेशंस में आपने सुना होगा, मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अब ये थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी सोचने के बारे में सोचना, ये क्या है, इसके अंडर क्या क्या आता है, स्ट्रैटेजिक नॉलेज, knowledge of outlining in order to capture the structure of the presented information, knowledge of the use of a particular टर्मिनोलॉजी, टॉपिक, प्रोसीजर, कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मुझे ये ऐसे समझ में आया, मेरा ये पढ़ने का तरीका है क्या है, मुझे अपनी थिंकिंग का ही जब पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, उस प्रोसेस का समझ में आ जाएगा, दैट इज मेटाकॉग्निशन। लाइक नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्ट, नॉलेज ऑफ द कॉग्निटिव डिमांड्स, knowledge of writing essays is a personal strength, awareness of one's own level of knowledge and skill, जब मुझे अपने बारे में क्लैरिटी है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मुझे इस चीज के बारे में सोचना है कि मुझे चीजें कैसे समझ में आती हैं, अपनी नॉलेज, मेरी नॉलेज क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरा टारगेट है और मेरा अभी लेवल यहाँ तक है, उसके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी होना, समझना अपने लर्निंग स्टाइल्स को खुद अपने लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, दैट इज मेटाकॉग्निशन। इस चीज की आपको ज्यादा क्लैरिटी अगर चाहिए, मेरे चैनल के ऊपर देयर आर अ फ्यू वीडियोस ऑन मेटाकॉग्निशन आल्सो, टेम्पलेट्स भी हैं, आप उसको भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अपनी क्लासेस में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, कुछ जनरल भी होते हैं, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू, लेट्स थिंक, the subject of science plays an important role in developing well-defined abilities in cognitive, affective and psychomotor domains in children. आपको मैंने पहले भी बताया कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, हम इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं उसके बारे में यूज करेंगे। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, और ये सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट में हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो डोमेन्स है हम उनको यूज करेंगे, कैसे करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो माय डियर एजुकेटर्स, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू,
You have to stay tuned if you want to know more about it. In the upcoming videos, we shall discuss more about it. Like I have already discussed with you our smart learning outcomes. I have talked with the structure of learning outcomes, subject to verb and object, karta, उसके बाद क्रिया, and then कर्म, क्या किया जा रहा है, किसके ऊपर हो जा है, ठीक है। तो वो हम सारी चीजें वो है हम डिस्कस करेंगे। तो stay tuned for that. I'll be sharing with you more information in the upcoming videos. Thank you and have a nice day.